Good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 5, Nomadic Empire. In this chapter, we have discussed already about the introduction of this chapter. We have discussed about the resource to understand the history of Mongols. We have also discussed about the political and social condition of Mongols. We were talking about the career of Genghis Khan also. Today we will discuss next topic, the Mongols after Genghis Khan. Dear student, in this topic it is clear information that after the death of Genghis, his dynasty divided into two parts. 1236 to 42, when the major gains were the Russian steppes, Bulgar, Kiev, Poland, Hungary, and that second phase, including the year 1255 to 1300, led to the conquest of all the China 1279, Iran, Iraq, and Syria. The frontier of the empire established after these campaign. So, you have to understand that after the Genghis Khan, how can the empire expand or which type of problem they have to face. The Mongols after Genghis Khan. Let us come to this paragraph and we will see that which type of problem they have to face. We can divide Mongol expansion after Genghis Khan's death into the distinct phase. The first, which is spanned the year 1236 to 42, when the major gains were in the Russian steppe, Bulgar, Kiev, Poland, and Hungary. The second phase, including the year 1255 to 1300, led to the conquest of all China 1279, Iran, Iraq, and Syria. The frontier of the empire established after these campaigns. The Mongol military forces met with few reversal in the decades after 1203, but quite noticeably after the 1260s, the original impulse of the campaigns could not be sustained in the West. Although Vienna and beyond the Western Europe as well as Egypt was within the grasp of Mongol forces, their retreat from the Hungarian steppes and defeat at the hands of the Egyptian forces signaled the emergence of new political trends. There were two facts to this. The first was the consequence of the internal politics of the succession within the Mongol family, where the descendant of Jochi and Ogodoi allied the control of the office of the great Khan in the first two generations. In this paragraph, author clearly want to inform you that कि चंगेज की मृत्यु के पश्चात पूरा मंगोल साम्राज्य दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। दो चरण दिखते हैं, पहला 1236 टू 1242 और दूसरा 1255 टू 1300। पहले के 1236 टू 1242 के आसपास स्टेपी क्षेत्र बुल्गार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में इनको काफ़ी सफलता मिली और बाद में 1255 जो 1300 था, इनमें ईरान, इराक, सीरिया तो इन लोगों ने विजय प्राप्त की। और इन अभियानों के पश्चात, इन कैंपेन के पश्चात साम्राज्य की सीमाएं में काफ़ी स्थिरता आ गई। लेकिन एक बदलाव दिखता है 1203 में। 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपर्याय का सामना करना पड़ा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1260 के डिकेड्स में आते आते जो वेस्टर्न सैन्य कैंपेन्स किए गए, मिलिट्री कैंपेन किए गए, वो शुरुआती जो आवेग थे, जो शुरुआती जो स्टेजेस थे, उससे काफ़ी फास्ट थे। वियना और उससे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे। मंगोलों ने वियना को जीता, मिस्र को जीता और काफ़ी बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने
और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय हो जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिलते हैं। इट मीन्स एक तरफ तो उन्हें विजय मिल रही और दूसरी तरफ इजिप्ट से वो हार करके नई शक्तियों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। 1260s, the original impact of the campaign could not be sustained in the west. पश्चिम की तरफ ये पूरी तरीके से सफल नहीं हुई। Although Vienna grasp of Mongol forces there retreat from the Hungarian steppes and defeated at the hands of the Egyptian. इजिप्ट के हाथों इनको हार का सामना करना। They have to face the defeat, the emergence of new political trends, and this process emergence the new political trends. There were two facts to this within the Mongol family, where the descendant of Jochi and Ogodoi allied to control the office of the great Khan in the first two generations. These interests were more important than the pursuit of campaign in Europe. The second compulsion occurred as the Jochi and Ogodoi lineage and the marginalized by the Toluyud branches of the Gangezi Khan, descendant within the accession of Monke, a descendant to Toluyu, Gangezi Khan, youngest son. Military campaign were pursued energetically in Iran during the 1250s, but the Toluyud interest in the conquest of China increasing during the 1260s forces and supplies were increasingly diverted into the heartland of the Mongol dominions. हमने देखा, वी हैव सीन दैट कंडीशन दैट हैज चेंज, बदल रहे थे। मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेके भी, सक्सेशन को लेके भी राजनीति शुरू हो गई। दो जनरेशन में जोची और ओगोदोई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए। अब उनके लिए यूरोप में अभियान करना सबसे महत्वपूर्ण था। यूरोप में अभियान करने की जगह अब वे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लगे। इट मीन्स दैट दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्री। इन स्पाइट ऑफ दैट दे नो दैट कि उनकी जो जीतने की, राज्य जीतने की लालसा थी यूरोप में, वो कम होने लगी। अब वो अपने राज्य को सुरक्षित रखने में ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे। चंगेज खान का सबसे छोटा पुत्र तोलुई का वंशज था मोंके। उसके राज्याभिषेक, मोंके जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के डिकेड्स में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए, परंतु 1260 के डिकेड्स में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों में तो वृद्धि की, उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य की तरफ से हटाकर उसने चाइना की तरफ भेज दिया। इट मीन्स अब उसका इंटरेस्ट ईरान को जीतने की जगह चाइनीज डोमिनेंस को जीतने में था, और वो अपने को ज़्यादातर चाइना की तरफ मूव किए। रसद सामग्रियाँ मंगोल साम्राज्य की मुख्य भाग की ओर से ईरान से उठा के चाइना की तरफ भेज दिए गए, मंगोलिया डोमिनेंस की तरफ भेजे गए। इसके परिणामस्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि ने उनके पश्चिम की ओर एक्सपेंशन को रोक दिया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा, चाइना एंड रशियन बाउंड्री पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़े, आपसी झगड़े ने जोची वंशज का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से भी हटा दिया। इट मीन्स एक ही परिवार के कई सारे लोग आपस में अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ने लगे। साम्राज्य के को यूनाइट रखने की जगह वो अपने हितों पे ध्यान ज़्यादा देने लगे। इसलिए मंगोल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़ने लगी, और यहीं से एक डिक्लाइन हमें दिखता है। इनके पश्चिम की ओर इसका विस्तार हो गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची जो थे
उन्होंने जब आपस में लड़ाई लड़ी तो उनका यूरोप विजय से उनका ध्यान हट गया और फिर पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए। वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए शासक परिवार ने सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। अगर आप देखेंगे तो कह रहे द सस्पेंशन ऑफ मंगोल एक्सपेंशन in the West did not arrest their campaign in China, which was reunited under the Mongols paradoxically. It was the moment of its greatest success that internal turbulence between members of the ruling family that manifested itself. The next section discuss the factor that led to some of the greatest success of the Mongol political enterprises but inhibited its progress. पश्चिमी मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान रुके नहीं। वस्तुतः उन्होंने चीन को एक बड़े क्षेत्र को जीतना शुरू किया और चीन को यूनाइट करना का प्रयास किया। ये सबसे बड़ी सफलता है उनकी मंगोलों की थी कि उन्होंने चीन को एक बार रीयूनाइट किया, एकत्रित किया, एक साथ लाया। इसके बारे में हम आगे डिटेल करेंगे। यहाँ से आपको मंगोलों की राजनीतिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति के बारे में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम ध्यान देंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वेयर वी हैव सीन किस तरीके से उन्होंने अपनी सेनाओं को संगठित किया, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत की और अपने समाज के सभी लोगों के साथ यूनाइट बनाने रखने में सफल हुए। सोशल, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन among the Mongols and many other nomadic society, as well all the boyded adult males of the tribe bore arms. They constituted the armed forces when the occasions demanded. The unifications of the different Mongol tribes and subsequent campaigns against diverse people introduced new member into Genghis Khan army, complicating the composition in the relatively small, the undifferentiated body into incredible heterogeneous masses of people. It included the group like the Turki, Uyghurs, who had accepted his authority willingly. It also included the defeated people like the Karaites, who were accommodated in the confederacy despite their earlier hostility. Genghis Khan worked to systematically erase and old tribal identities of the different groups who joined his confederacy. His army was organized according to the old steppe system of the decimal units, in the division of 10, 100 and 1000 and 10,000 soldiers. In the old system, the clan and the tribes would have to coexisted within the decimal units. Genghis Khan stopped his practices. He divided the old tribes groupings and distributed their members into new military units. Any individuals who tried to move from his her allowed groups without permission received harsh punishment. The largest unit of soldiers, approximating 10,000 soldiers to one, now included the fragmented groups of people from the variety of different tribes and clans. This altered the old steppe social order, integrating different lineages and clans and providing them with a new identity derived from the progenitors Genghis Khan.
this paragraph, we are going to read about social, political, and military organization of the Mongol Empire. We will see that which type of new reform was done by Genghis Khan in their army and in their social groups. Which type of problem he had to face to reunite their military power. Genghis was very intelligent and very brave also. He understand that whenever we will not unite our various ethnic groups in one, it cannot be possible to conquer the very vast area. So that's why he decided to reform the military, to reform the military organization, social system, economic system, all things. And he started. Mongolo, if we will see the social condition of Mongols, nomadic peoples, then we find the person who is physically fit, he अपने को शस्त्रों के द्वारा सुसज्जित कर लेता था, हथियारों से अपने को कई सारे हथियार लेके सैनिक के रूप में अपने को चेंज कर लेता था। आई मीन टू से दैट कि मंगोल और अनेक जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जो तंदुरुस्त होते थे, फिजिकली फिट होते थे, उस वजह से हथियार बंद होते थे, विपन्स के साथ होते थे, और कभी कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से एक सशस्त्र सेना बना ली जाती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण, उनके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। चंगेज कॉन्कर्ड द वेरियस एथनिक ग्रुप्स, कई सारे ग्रुप को उसने जीता था, और इसलिए मंगोल की सेना में कई सारे एथनिक ग्रुप्स के लोग सम्मिलित थे। इनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित समूह थी, वो अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जाति संगठन में परिवर्तित हो गई। छोटे छोटे वर्ग, छोटी छोटी सेनाएं जो अलग अलग रह के कम पावरफुल थी, एक साथ रीयूनाइट होकर के मोस्ट पावरफुल आर्मी के रूप में चंगेज के साथ जुड़ गई। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें उनकी सत्ता की स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के, इसमें वेरियस ग्रुप्स, सम एक्सेप्टेड गंगेजी खान लीडरशिप एंड सम आफ्टर डिफीट एक्सेप्टेड। कुछ लोग हार के और कुछ लोग स्वतः अपनी स्वेच्छा से चंगेज खान की सेना में सम्मिलित हुए। स्वेच्छा से सम्मिलित होने वालों में जो विभिन्न विजातीय ग्रुप थे, उसमें उइगुर समुदाय, तुर्की मूल के जो लोग थे, केराइट्स जैसे पराजित लोग भी सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद इस कॉन्फेडरेसी में शामिल किया गया, इस महासंघ में शामिल किया गया। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उनके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृत संकल्प था। उसने डिसाइड किया था, डिसाइडेड दैट एट एनी रेट, एट एनी कास्ट, देयर वाज नो प्लेस फॉर द रिबिलियंस। विद्रोहियों के लिए कोई जगह नहीं थी। एंड ही रिजॉल्व दैट एट एनी रेट आई विल फिनिश। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों को पुरानी दशमलव पद्धति, डेसिमल मेथड्स में उसने अपनी आर्मी को, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को रीयूनाइट किया, जिसमें 100, 10, 100, 1000, 10,000 जैसे सैनिकों को यूनिट्स तैयार की गई। ओल्ड सिस्टम में क्लैन, ट्राइब्स और सैनिक जो थे वो डेसिमल इकाइयों के साथ अस्तित्व में थे। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूह, ट्राइबल्स ग्रुप्स को छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर अनेक सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में व्यक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता। इट मीन्स चंगेज खान अवेयर ऑफ दैट the indiscipline of the army, so that's why he arranged a system that without permission, if anyone move any other place, he would be punished by senior. He reunited their army on the basis of decimal system. He also believed in the discipline
military discipline and tried to establish it in their army. सैनिकों की जो सबसे बड़ी इकाई मंगोलों की सेना में थी वो लगभग 10,000 की थी, जिसे तुमन कहा गया। तुमन, और यहीं से सैनिकों की विकास मंगोलों में दिखाई देता है। उसने स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत करके, एक साथ यूनाइट करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और जिसका फाउंडर वो खुद बना। चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान दी। द प्रोजिनेटर फ्रॉम इट्स, किस फॉर्म में, एक प्रोजिनेटर्स फॉर्म में उसको स्टेब्लिश किया। द न्यू मिलिट्री contingents very required to serve under his fourth son and specially chosen the captains of his army units called Noyan. Also important within the new regime were a band of followers who had served Gangeji Khan's loyal through grave adversity for the many years. Gangeji Khan publicly honored some of these individuals as his blood brothers Anda. Yet other freedom of humbler rank were given a special ranking as his bondsman Naukar, a title that marked their close relationship with their masters. This ranking did not preserve the right of the old clan chieftains. The new aristocracy derived its status from a close relationship with the great Khan of the Mongols. नई सैनिक टुकड़ियाँ, a new military, the contingents were required to serve under his fourth son and especially chosen captain of his army units called Noyan. नई सैनिक टुकड़ियों को, जिसको उसने अपने 4 पुत्रों के अधीन रखा, विशेष रूप से जो सेलेक्टेड कैप्टन्स थे वो उनके अधीन कार्य करते थे, जिन्हें नोयान कहा गया। इस नई व्यवस्था में, इस न्यू सिस्टम में उनके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में चंगेज खान का साथ नहीं छोड़ा था। चंगेज खान के सार्वजनिक रूप से अनेक अवसरों पे इन लोगों को सम्मान प्रदान किया था। इनको आंडा या सगा भाई कहकर सम्मानित किया। ऐसे अन्य और जो कई जो आंडा से निम्न श्रेणी थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे, इनको चंगेज खान ने अपना खास नौकर का पद दिया। इनको नौकर का पद इन लोगों का अपने स्वामी के साथ गहरे संबंध को ही दिखाता है। Nowker does not mean the servant. Nowker means the very sacred relation between their masters. एक लंबे समय तक उन्होंने उसके साथ युद्ध भूमि में साथ दिया, इसलिए वो उनके साथ रहे, उनका टाइम देखा। In this new hierarchy, the Gangeji Khan assigned the responsibility of the governor, the newly conquered people, to his fourth son. These comprised the 4 ulus, a term that did not originally mean fixed territories. Gangeji Khan's lifetime was still the age of rapid conquest and expanding dominions, where frontiers were still extremely fluid. For example, the eldest son Jochi received the Russian steppes, but the furthest extent of his territory, Ulus, was indeterminate. It extended as far west as his horses could roam. The second son, Chagatai, was given the Transoxiana steppes and land north to the Pamir mountains, adjacent of those of his brother. The presumably these lands would shift as Jochi marched westward. Gangeji Khan
had indicated that his third son Ogodoi would succeeded him as the great Khan, and on the succession of the prince established capital at Karakoram. The youngest son Toluyu received the ancestral land of Mongolia. Gangeji Khan envisaged his son would rule the empire collectively, and to underline this point, military contingents Tama of the individuals princes were placed in each ulus. The sense of dominance shared by the member of the family was underlined at the assembly of chieftains Kuliltai, where all decisions relating to the family are the state for the forthcoming season. Campaigns, distributions of plunder, pasture lands, and succession were collectively taken. In this paragraph, author want to inform you about that Mongol distributed their whole empire into their son. कुछ इलाके उनके पुत्रों को मिले, कौन कौन सा क्षेत्र किन किन पुत्रों को दिया गया, किन किन अपने लड़कों को उसने दिया, इनके बारे में बात करता है। कहता है इस नवीन श्रेणी में जो हायरकी बनी, चंगेज खान ने अपने नवविजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। चारों पुत्रों अपने साम्राज्य को उसने बांट दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं, उलूस का अर्थ था चंगेज खान के जीवन काल में अपने अभी भी निरंतर विजयों का साम्राज्य को अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। इट मीन्स मंगोल आर्मी की बाउंड्री स्टेबल नहीं थी। डे बाय डे इट वाज एक्सटेंड, वो बढ़ रही थी, धीरे धीरे उसका विकास हो रहा था। इसीलिए उसने जिस उलूस की स्थापना की वो किसी जमीन का द्योतक नहीं थी। लैंड को उलूस नहीं कहते थे। कहता है कि जो ये नया इस तरह के नए वर्गीकरण पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उपजे अभिजात वर्ग को अपनी प्रतिष्ठा में मंगोलों के महानायकों के साथ उसने बहुत अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश किए। और यही हायरकी चंगेज खान उन नए जीते हुए क्षेत्रों को अपने पुत्रों में उसने बांट दिया। और इन्हीं से उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ कोई सर्टेन टेरिटरी नहीं है। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थी। उसके सबसे छोटे पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दूरस्थ सीमा उलूस निर्धारित नहीं करती थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे, जहाँ तक उसके घोड़े दौड़ के जा सकते थे। उसकी उत्तरी सीमा वहाँ तक सीमित थी, उसकी पश्चिमी सीमा वहाँ तक विस्तृत थी। उसका विस्तार जोची को जो क्षेत्र मिला था स्टेपी रसियन प्रदेश, वो इतना विस्तृत था कि उसके घोड़े पश्चिम में जहाँ तक चले गए वो सीमा उसके अंतर्गत आ जाती। इसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान तथा स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र मिल गया, जो उसके भाई के प्रदेश से लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे उसके अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होते गए होंगे। उसका दूसरा पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर का पहाड़ी क्षेत्र मिला। पामीर माउंटेन्स का एरिया उसको मिला। इसकी बाउंड्री दोनों भाइयों की बाउंड्री से सट रही थी, एक पास पास थी। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदोई उसका उत्तराधिकारी होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द एक्चुअल सक्सेसर ऑफ चंगेज खान, हिज थर्ड सन, देयर नेम वाज ओगोदोई, और उस महान खान की उपाधि दी जाएगी। ओगोदोई वाज रिवार्डेड एज महान खान, का खान। ही वाज इंटाइटल्ड का खान, उसे का खान या खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद
इट मीन्स ओगोदोई ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी कराकोरम में प्रतिष्ठित की और उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोई ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर शासन करें और शासन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के अलग अलग सैन्य टुकड़ियां, जिसे तामा कहते थे, निर्धारित कर दी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदार के परिषद करिलताई में होता था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरियस टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम, व्हाट डू यू मीन कुरिलताई या करिलताई? करिलताई क्या है, कुरिलताई क्या है? तो कहता है कुरिलताई एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अनुसार परिवार के सदस्यों में राज्यों की भागीदारी का बोध सरदारों की परिषद कुरिलताई होता है। इट मीन्स इट इज द कम्युनिटी ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन सॉरी। और ये चीजें करिलताई निर्धारित करती थी। करिलताई जिसे परिवार या राज्य के करिलताई परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों में लूट के माल का बंटवारा, चरागाह भूमि का उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से कुरिलताई के अंतर्गत ही की जाती थी। ये व्हाट वी हैव रीड हियर, we have discussed in this paragraph about the social, political and military organization. We have also discussed that which areas obtained by their son to his father Genghis Khan, and the boundary is clear. It is certainly we can say that after the death of Genghis Khan, the boundary was not what सीमित नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, उनके बढ़ने की सीमाएं अभी भी बनी रही। उसने पुराने सरदारों के एक समूह का गठन किया जिसे कुरिलताई कहते थे। कुरिलताई ही राज परिवारों के विवादों को सुलझाती थी, युद्ध में लूट के माल को बांटती थी। इस तरीके से उसने अपनी पूरी सेना को डेसिमल सिस्टम पे इस्टेब्लिश की। हर अपनी सेना में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स थे, बहुत सारे वर्ग के लोग थे, छोटे छोटे ग्रुप्स के, उनको यूनाइट किया। उन ग्रुप्स को अलग अलग वर्गों में बांट ना करके एक साथ रखा और एक बड़ी सेना, ताकतवर सेना उसने बना ली। इस तरीके से हम वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मंगोल बिकॉज ऑफ ही व्हाट एस्टेब्लिश अ वेरी वास्ट एम्पायर। आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम बात करेंगे। Okay, goodbye and take care.